پہ بھی اور اس پہ بھی انشاءاللہ. جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. نیکی کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اور اقرار صاحب کون ہے ہمارے ساتھ آج؟ جی جس طرح کہ ہم ہمیشہ کوششیں کرتے ہیں کہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک نیکی ہے کہ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کا ایک بہت قیمتی ترین ایئر ٹائم ہم کچھ ایسے اداروں کے لیے مختص کریں جو آئیں آپ کو اپنا کام بتائیں. اور ان میں سے بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کے کام کو ذاتی طور پر ہم جانتے بھی ہیں, سراہتے بھی ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس انداز میں ان اداروں کو سپورٹ کیا جا سکے انہیں سپورٹ بھی کیا جائے. آج ایک ایسا ہی ادارہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہماری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کے بارے میں تفصیلات ابھی آپ کو دکھائیں گے بھی, بات بھی کریں گے اس کے سربراہ سے. آپ جانیے, دیکھیے, انسپریشن بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اتنا وقت نہیں دے سکتے یا اتنا کام نہیں کر سکتے تو ہم جس انداز میں بھی ان اداروں کے ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں, جس طرح سے بھی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ہمیں ان اداروں کی مدد ضرور کرنی چاہیے. ہم اپنا فریضہ اس ایئر ٹائم کو ان اداروں کے نام مختص کر کے ادا کر رہے ہیں. آپ کو تعارف کرواتے ہیں آپ سے المدثر ٹرسٹ. ایک بڑی ایک ایسی کہانی ہے جو ہم سب پاکستانیوں کو انسپائر کر سکتی ہے. پاکستان سے باہر رہنے والے ایک پاکستانی, اور وہاں ظاہر ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں لگتا ضرور ہے لیکن وہاں درختوں کے ساتھ پیسے یا ڈالرز نہیں لگتے, یوروز یا پاؤنڈ وہاں زمین سے اگتے نہیں ہیں. بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور شاید یہاں سے زیادہ سٹرگل, ایفرٹ, پنکچویلٹی کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کوئی عزت, مرتبہ یا مقام آپ کو عطا کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں جب کوئی تکلیف ہوئی, پاکستان میں جب کوئی پریشانی ہوئی, اوورسیز پاکستانیز نے ہمیشہ آگے بڑھ کر پاکستان کے لوگوں کی مدد کی ہے. اس لیے کہ پاکستان کی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں, پاکستان کی دھرتی سے زیادہ پیار کرتے ہیں شاید یہاں رہنے والے لوگوں سے, اور یہ میرا یقین ہے. اس لیے کہ جب وطن سے آپ دور ہوتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پروردگار نے پاکستان کی شکل میں کتنی پیاری نعمت آپ کو دی ہے. تو ایک ایسے ہی پاکستانی جو کہ فرانس میں مقیم ہے, انہوں نے پاکستان میں المدثر ٹرسٹ کے نام سے ایک ادارے کا قیام عمل میں لائے ہیں. وہ یہ ادارہ کیا کرتا ہے, اس ادارے کی بنیاد کیسے رکھی گئی, اور آپ اور ہم سب مل کر اس میں کس طرح سے ہاتھ بٹا سکتے ہیں اپنے اس پیارے پاکستانی بھائی کا جو پاکستان سے باہر رہتے ہوئے بھی پاکستانیوں کے دکھ اور درد کو محسوس کرتے ہیں. اس پر آج بات کریں گے, لیکن آپ کو دکھاتے ہیں المدثر ٹرسٹ کھاریاں میں کس طرح سے کام کر رہا ہے, کن لوگوں کی مدد کر رہا ہے, اور اس ادارے کا ماحول کس طرح کا ہے. ایک ویڈیو پیکیج ہم نے تیار کیا, یہ دیکھیے. میں ماں تے میں تے اپنے فرض پورے کرنے ہیں, میں تے نہ سٹ سکتی. میں تے کدی فرق ہی نہیں کیتا میرے بچے بولدے نہیں ہیں جے فلانا, میں کدی محسوس نہیں ہون دتا انہاں میں امی کا یہ کہنا سہل ہے کہ زندگی امتحان ہے, مگر کچھ لوگ اس سماج میں ایسے بھی ہیں جن کی زندگی کا ہر سال, ہر دن اور ہر لمحہ امتحان ہوتا ہے. معذور بچوں کے دکھ وہی جان سکتا ہے جو کسی نہ کسی ذاتی حوالے سے اس مرحلے سے گزرا ہو. جو بچے دیکھ نہیں سکتے, جو قوت گویائی سے محروم ہیں, جو سننے سے قاصر ہیں, یا وہ بچے جو کسی ذہنی معذوری کا شکار ہیں, وہ اس معاشرے میں ہمیشہ بے توجہی کا شکار رہتے ہیں. بیشتر کو زندگی کی بنیادی سہولیات دستیاب نہیں, نہ خوراک, نہ تعلیم, نہ کھیل. ان کے لیے ایک عام انسان جیسی زندگی خواب ہے, بلکہ بعض اوقات تو ان کے لیے زندگی ہی عذاب ہے. سید مدثر شاہ کے 8 بہن بھائیوں میں سے 4 معذوری کا شکار ہے. سمندر پار نوکری کرتے ہوئے مدثر شاہ نے اس خواب کے سفر کا آغاز کیا. خاندان والوں نے مل کر 1999 میں ایک چھوٹے سے کمرے میں صرف 8 معذور افراد کے اسکول کا آغاز کیا, اور اب کئی ایکڑ پر مشتمل المدثر اسپیشل ایجوکیشن ٹرسٹ پاکستان میں معذور افراد کی تعلیم کا سب سے بڑا ادارہ بن چکا ہے. یہاں 450 معذور طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہنر سیکھتے ہیں, کھیلتے ہیں اور گاتے ہیں.
किंडर गार्डन से लेकर 12वीं जमात तक स्कूल में आईटी लैब भी है, नाबीना अफराद के लिए ऑडियो लैब भी, जदीद लाइब्रेरी का इंतजाम भी है, लेगो रूम भी और दर्स व तदरीस के लिए कई हाल भी। अब इन बच्चों के ख्वाब आपकी मुट्ठी में कैद हैं। ये इम्तहान न इन बच्चों का है, न इनके वालिदैन का है। ये इम्तहान इस माशरे का है, हम सब का है। अब आपके इख्तियार में है कि इन बच्चों को जिंदगी बख्श दें या फिर अंधेरों में भटकने दें। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder how to twinkle. ज़बरदस्त। क्या बात है जनाब, जिंदाबाद। और खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं ऐसे शानदार पाकिस्तानी जो नौकरी के लिए, अपने कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए पाकिस्तान से बाहर तो चले गए लेकिन पाकिस्तान को भूले नहीं और एक ऐसा फरीज़ा, इतनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जो शायद यहाँ रहते हुए भी कोई सर अंजाम ना दे सके। हमारे साथ अल मुदस्सर ट्रस्ट के सरबराह जनाब मुदस्सर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। सर, सैल्यूट के साथ और सलाम के साथ आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, आप जो खिदमत कर रहे हैं। और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में बड़ा आसान है ये काम करना, लेकिन खारियाँ जैसे इलाके में जहाँ इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बेचारे बेयारो मददगार रहते थे, जिन्हें कोई स्कूल, कोई तालीमी प्लेटफॉर्म मुयसर नहीं आता था, वहाँ आपने इस इदारे की बुनियाद रखी। ये और ज़्यादा काबिल तहसीन बात है। लेकिन क्यों आपको ये ख्याल आया? आप अच्छा खासा लोग ख्वाहिश करते हैं यूरोप जाने की, पेरिस चले गए, फ्रांस चले गए, अल्लाह ने हाथ भी पकड़ लिया, रिस्क की भी फरावानी थी, तो ये तो एक पूरी परेशानी वाली, स्ट्रेस वाली कि आपको हर काम करना है, बिल्डिंग की तामीर से लेके, असातिज़ा को हायर करने से लेके, बच्चों के एडमिशन तक। तो ये काम कैसे और क्यों शुरू किया आपने? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने ये वीडियो में देखा है, मेरे अपने 4 बहन भाई स्पेशल थे। मैंने अपने माँ को बड़े इम्तिहान में देखा, मैं उनमें पैदा हुआ, उनमें बड़ा हुआ, तो ये गुड लक कि मैं बचपन में बाहर चला गया। 1980 में मैं फ्रांस में गया, तो स्टूडेंट था पाकिस्तान में, सही, तो बाहर चला गया, नालायक स्टूडेंट था। तो ये सब कुछ माँ बाप की दुआएं, क्या कहना है, ये और वो बहन भाइयों की दुआएं कि मैंने बिजनेस किया, अल्लाह ताला ने उसमें बहुत बरकत दी। तो ये एक मेरा ख्वाब था, एक मन्नत थी। सही। तो मेरी बहादुरी क्या थी कि सबसे पहली जो मेरी तनख्वाह थी उसमें स्पेशल लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। फिर मैंने एक गुलदान घर में रखा हुआ था कि जो डेली कायन होता था, वो मैं कहता या मेरा नहीं है, ये मैंने खुदा की राह में देने। तो मेरा ईमान है कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मैं फ्रेंच आर्किटेक्ट लेके आया पाकिस्तान में, मैंने बड़े शौक से इसको मैं बनाया। तो ये बरकत जो है ये उस कायन की है। सुभान अल्लाह। जो मैंने वो गुलदान में डेली रोजाना पॉइंट डालते रहते थे, डालता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे आज ये कई एकड़ पर मुहित हम अल मुदस्सर ट्रस्ट देखते हैं, जिसके बारे में दावा ये है कि ये जो चैलेंज्ड बच्चे हैं जहनी तौर पर या बिनाई से महरूम, उनका सबसे बड़ा इदारा है इस वक्त पाकिस्तान। क्या कहने जनाब, जिंदाबाद। कितने लोग हैं इसमें, मतलब जो एंटरटेन? सर, ये इस वक्त तकरीबन 500 बच्चे हैं। हम टोटल डिसेबिलिटी को डील करते हैं। इसके अंदर अलग अलग स्कूल है, स्कूल फॉर ब्लाइंड है, स्कूल फॉर डेफ है, स्कूल फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटली चैलेंज बच्चों का सेंटर है, फिर फिजिकली हैंडीकैप बच्चों का अलग दायरा है, वोकेशनल का सेंटर है, ये रेजिडेंशियल दायरा है। 100+ बच्चे वहाँ पे रहते भी हैं। जिंदाबाद। अच्छा, तो ये जिसका एक एक सिक्के से आगाज हुआ, फ्रेंच की उस कॉइन को क्या कहते हैं वैसे वहाँ पे? उस वक्त फ्रैंक थे, फ्रैंक बाद में यूरो आ गया। ठीक है, तो आपने वो एक एक फ्रैंक से इसका आगाज किया, और आज ये जाहिर है इसका बजट लाखों करोड़ों में, बल्कि शायद इससे ज्यादा ही होगा। तो ये अब आज किस तरह से चल रहा है? आपका अपना तो जितनी सपोर्ट आप वहर कर रहे हैं, तो और लोग शामिल हुए इस काफिले में, इस कारवां में? इसको मैंने बनाया अपनी फैमिली के साथ। सही। तकरीबन
7-8 साल इसको चलाया भी सही, केले खुद में। अपनी मदद आपके तहत। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद। अपने फैमिली के साथ इसको चलाया भी। फिर इसके अखराजात इतने ज़्यादा, ये केले बंदे का काम नहीं है। फिर अपने दोस्तों को मलाया। मेरी गुड लक थी कि मुझे अच्छे दोस्त मिले। मैं बाद में मेरे बोर्ड में भी वो सारे दोस्त रहे हैं जिनसे मैंने सीखा है। इनमें ख्वाजा ज़हीर हैं, ये फेडरल सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहे हैं। सही। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं ये फेडरल सेक्रेटरी फिनांस और फेडरल सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन रहे हैं। CBR के चेयरमैन थे मियाँ इकबाल फरीद साहब, अभी वो फोत हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में कर दे। उनकी बहुत खिदमात थी, वो हमारे बोर्ड में थे। तो ये वो लोग थे जिनसे मैंने सीखा। मैं तो इसका प्रोफेशनल नहीं था। सही। तो फिर इसमें बेशुमार लोग हैं जिनमें ओवरसीज पाकिस्तानी, चूँकि ये प्रोजेक्ट जो है ये है रूरल एरिया का प्रोजेक्ट है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, तो मेरे बहन भाई तो पढ़े नहीं थे क्योंकि गांव में दायरा ही नहीं था। आज भी 2020 में पूरे पाकिस्तान में 10 इलाकों में कोई स्कूल नहीं है। सही। तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गाँव में इसको बनाऊँ। आज तो गवर्नमेंट ने तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दायरे बनाए हैं, लेकिन आज भी पूरे पाकिस्तान में 10 इलाकों में स्कूल नहीं है, जबकि ज़्यादा पॉपुलेशन जो है मेरा ख्याल 70 मोर देन 70% वो तो 10 इलाकों में रहती है। तो ये अल्लाह का करम कि मैंने एक आम आदमी शाह साहब जो देख रहा है इस वक्त टेलीविज़न की स्क्रीन पर, वो अगर सपोर्ट करना चाहता है, पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है ज़्यादा लोग रिलेट वही करते हैं कि जिनको खुद ऐसे किसी जिसके भाई को, बहन को या फैमिली में कोई चैलेंज हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये भी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि मेरे बहन भाई बच्चे माँ बाप सब सलामत हैं। अल्लाह ताला ने कोई चैलेंज नहीं दिया उन्हें जहनी तौर पर, बीनाई का कोई मामला नहीं है। तो ये ज़रूरी थोड़ा ही है कि आपका कोई बेटा या बेटी या बहन भाई माजूर हो तो ही आप कोई अच्छा काम करें, बल्कि शुक्र अदा करें अल्लाह ताला की ज़ात का कि कोई नहीं है, और शुक्र अदा करके आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो इन बच्चों को और इनकी देखभाल कर रहे हैं। ये तो एक आम आदमी कैसे सपोर्ट कर सकता है अल-मुदस्सिर? देखिए मैंने बताया कि तकरीबन 500 बच्चे हैं, बल्कि हमारी एक ब्रांच भी है बरनाला बिम्बरदात कश्मीर में, वहाँ पे भी मोर देन 70 बच्चे वहाँ पे भी हैं। सही। बच्चा एक स्पॉन्सर कर सकते हैं। ओके। देखें एक बच्चा 4000 रुपया माना, मैंने 48,000 पर ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। ये एक स्पेशल बच्चे की ज़िंदगी है। फिर हम वहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन है, हम बना रहे हैं हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन शुरू है, उसके साथ यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं। क्या कहने। तो एक ईंट खरीद सकते हैं। एक ईंट की कितनी कीमत है? 1000 रुपया। सही। तो आप इजीली इसको डोनेट कर सकते हैं और ये सदका जारी है। जिंदाबाद। और ये बड़ा एक माशाल्लाह लंबा सफर है जो अब तक आपने भी 80 से ऑनवर्ड इसको तय किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सबका फर्ज है कि इसमें हम साथ निभाएं। जो हम चाह रहे हैं, हम तहसील खारियां से शुरू कर रहे हैं। अभी हमने जो सर्वे किया था वो तो सिर्फ जहाँ पे अभी कॉम्प्लेक्स है उसके सराउंडिंग में हमने सर्वे किया। अभी बेशुमार बच्चे हैं जो घरों में, हमारे पास तो जगह ही नहीं है। अब भी तकरीबन 20 क्लासेस हैं जिनको हम ये फिनिशिंग पे हैं। होपफुली के 15 अक्टूबर ये डे होता है ब्लाइंड का, वाइट कैन सेफ्टी डे, उस दिन हम उसकी ओपनिंग करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। तो उसमें हम चाह रहे हैं कि आप एक ईंट खरीदें, हमें एक खुद। और ये देखिए मैंने बहुत सारे लोगों से तारीफ सुनी, और मैं भी खुद भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर कभी वहाँ आऊँगा। और लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो इर्द गिर्द के एरियाज़ के लोग हैं वो खुद जाके देख ले काम। अगर किसी तरह की कोई तसल्ली आपको कुछ स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप देखिए कि बच्चे किस तरह से वो वहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। GT रोड से 1.5 किलोमीटर है। सही। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने GT रोड के ऊपर चौक अल-मुदस्सिर चौक बनाया, एक मोन्यूमेंट वहाँ पे बना हुआ है। तो 1.5 किलोमीटर कोई दूर नहीं है। जाते हुए देखते जाते देख सकते किसी बच्चे की मुस्कुराहट का बायस बन जाएंगे आप। बेशक। और जैसा कि ख़वातीन हज़रात हमने वीडियो में भी देखा, और बहुत खूबसूरत जुमला कि ये वो तमाम बच्चे, और ये वो आप सोचिए खारियाँ के इर्द गिर्द के छोटे छोटे से देहात और उससे नज़दीक और दूर से आए हुए बच्चे जो अल-मुदस्सिर ट्रस्ट में, एक तो ज़िंदगी के बहुत सारे चैलेंजेस, बड़े हम्बल बैकग्राउंड के लोग, और फिर
فزیکلی چیلنجڈ بچے جو سوچنے کے حوالے سے جن کو چیلنج کا سامنا ہے، جن کو دیکھنے کے حوالے سے چیلنج کا سامنا ہے، ان تمام بچوں کو یہاں جدید ترین طریقوں سے تعلیم دی جا رہی ہے، اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. اور جس طرح ڈاکومنٹری میں یہ جملہ تھا کہ ان سب بچوں کو، اور سب کے خواب ہوتے ہیں، سب لوگ خواب ضرور دیکھتے ہیں، ان بچوں کے خواب آپ کی مٹھی میں ہیں. ذرا مٹھی کھول دیجئے تو انشاءاللہ ان بچوں کو ان کے خوابوں تک پہنچنے میں آسانی ہوگی. ہاتھ بڑھائیے، المدثر ٹرسٹ کا ساتھ دیجئے اور ایسے باقی اداروں کا بھی ساتھ دیجئے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے پاکستانی بہت قابل فخر ہیں جو پاکستان سے دور رہ کر بھی ایک ایک سکے سے آغاز کر کے آج ہم نے دیکھا کیا پرشکوہ عمارت ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ماشاءاللہ چلا رہے ہیں. مدثر حسین شاہ صاحب آپ کو سلام ہے. ہم آپ کو تالیوں میں رخصت کریں گے اور جتنے ہمارے یہاں پہ کرو ممبرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ تمام پاکستانی جو پاکستان سے دور رہتے ہوئے بھی پاکستان کا درد محسوس کرتے ہیں، پاکستان کے لیے ہر مشکل وقت میں موجود رہتے ہیں، ہر آفت میں، ہر مصیبت میں آگے بڑھ کر اپنی مشکلات کو بھولتے ہوئے پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں. آپ سب پاکستانیوں کو سلام ہے. سلامت رہیں، خوش رہیں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ.